Hello, good morning everyone. Myself Arjit Agrawal. Today I am going to talk about the how to identify the breakout stock, the stock that has crossed the resistance level. Now, what is the meaning of resistance level? What is the support levels? We are going to discuss later on this session. Before starting this video, I would like to share one thing that this video is not at all for beginners. We are assuming that you know a little bit about the stock market. So let's start the today's session. First of all, let's understand what is the philosophy of the technical approach. If you see, all the technical analysts believe that market action discounts everything. What is the meaning of this statement? This means that whatever is happening in the market, they are considering all the factors which is available right now. I will give you one example. On 8th of November, Modi ji announced the demonetization, and 9th of November you see the impact. So all of a sudden you can start seeing the impact. So that means whatever is the current value of any stock, it's considering all the possible factors which is right now available. Second, price moves in trend. That if it's moving in upward direction, it is moving in upward direction. If it is moving in downward direction, it is moving in downward direction. If it's in accumulation phase or distribution phase, there are different types of phases, so they follow a particular trend. Stocks follow a particular trend. Third thing, history repeats itself, meaning that जो पहले हुआ है स्टॉक में वो आज भी होगा. That we assume whatever is happening before, that will happen in the future also. So on the basis of this, majorly we are going to focus today. Third point, whatever happened in the past, that is going to happen in the future as well. This is just a small differentiation between the technical analyst and the fundamental analyst. Like technical analysts believe on the focus on the market action, they believe on all the economic forces of the supply and demand. And the good thing about, I'm not going to discuss about all these points, but the good thing about the technical analyst that we can work on any dimension. Like we can do the monthly trading, we can do the weekly, intraday, just by seeing the charts. And the second best important thing about the technical analyst, that we can work on different sectors. We don't require any deep knowledge, but fundamental analysis require a huge knowledge for a particular sector. What is the meaning here? Like if we know the technical knowledge, we can invest on the cement sector, steel sector, IT sector, just by seeing the charts. But fundamental analysts को पूरी जानकारी चाहिए होगी. If they want to invest in the cement sector, they need to understand in and about all the things. So that's a good thing about with the technical analyst. Now this candlestick, this is basically candlestick. I'm not going to discuss about all the different types of candlestick like doji, hammer and all these things. We are going to discuss only these two candles, because in today's session we are going to discuss upon the support and resistance level majorly, but this also needs to understand. तो इस कैंडल का मतलब क्या है वो समझते हैं. बुलिश कैंडल, ये जो मेंशन है, बुलिश कैंडल का मतलब ये होता है मेरा जो स्टॉक का प्राइस है, अगर इस लेवल पे ओपन हुआ है, मेरा क्लोजिंग ओपन से ज़्यादा है. दैट्स इट. मेरा मान लो स्टॉक अगर 200 पे ओपन हुआ है तो क्लोजिंग मेरी 200 से अबव पर है, और ये स्टॉक इतना हाई पर गया है, ये स्टॉक इतना लो पर गया, तो इनको हम बोलते हैं अपर शेडो एंड लोअर शेडो. लेकिन मेरे को ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली बियरिश कैंडल कौन सी होती है कि स्टॉक मेरा अगर 210 पे ओपन हुआ है तो उसकी क्लोजिंग ओपन से नीचे है. इसका मतलब ये है क्लोजिंग मेरी जो है वो ओपनिंग से नीचे है. चलिए अब कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिसमें कैंडल स्टिक समझेंगे, और हम जो मैंने आपको बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उन सब के बारे में अब हम जानेंगे कैसे आइडेंटिफाइड करना है. तो मेरा अकाउंट जीरोधा में है, तो इस वजह से मैं जीरोधा में, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निकल टूल दे रखा, सारा दे रखा होता है उसमें, तो आप बहुत ईजिली एनालिसिस कर सकते हो. तो ये इन्फोसिस का चार्ट है आपके सामने, जो सबको मतलब पता है इन्फोसिस स्टॉक हमारा IT सेक्टर में है. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस कैंडल. तो ये जो कैंडल दे रखी है, इसमें अगर आप यहाँ पर देखो, ये इस प्राइस पे मेरा ओपन हुआ था, इस प्राइस पे मेरा क्लोजिंग हुआ है. दैट्स वाई दिस कैंडल इज ग्रीन. यू कैन सी द ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो हेयर. यहाँ पर ओपन क्लोजिंग हाई लो वॉल्यूम वगैरह डेट सब आप देख सकते हो. इस कैंडल पे जस्ट आपको लेकर जाना है. तो इस कैंडल की ओपनिंग कब हुई है? 1010 पर.
क्लोजिंग कभी 1031 पे, मतलब 11 पॉइंट्स मेरा ऊपर पे इसकी क्लोजिंग हुई है। हाई कहाँ तक गया 1034 तक, लो कहाँ तक गया है 1000 तक। कौन सी डेट में? 3rd ऑफ मार्च में। सिमिलरली ये कैंडल देखते हैं, रेड कैंडल। ये कैंडल मेरी कौन सी है? बियरिश कैंडल। मेरी ओपनिंग कहाँ पर हुई है? 1015 पर, लेकिन क्लोजिंग मेरी कहाँ पर हुई है? 990 पर। मतलब मेरा ये स्टॉक उस दिन कम पर बंद हुआ है ओपनिंग के अगेंस्ट में। अब एक कैंडल मैं आपको और दिखाता हूँ जो बहुत टाइम कन्फ्यूजन रहता है। वो कैंडल है ये कैंडल मेरी ग्रीन है, लेकिन उस दिन मेरे जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, उस डे में जो क्लोजिंग है वो मेरी रेड पर ही हुई है। उस दिन मेरे स्टॉक की क्लोजिंग कब हुई थी? 982 पर हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं उस दिन मेरी क्लोजिंग कब हुई थी? 982 पर हुई है। लेकिन इस दिन मेरी क्लोजिंग कब हुई है? 958 पर हुई है। मतलब मेरा ये अराउंड 4 पॉइंट्स से नीचे है, बट स्टिल दिस कैंडल इज इन ग्रीन। वाई? एज आई टोल्ड यू बिफोर, क्योंकि मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर बेसिस पर मेरी कैंडल बनती है। तो मेरी इसकी ओपनिंग कब हुई है? 930 पे अराउंड, लेकिन क्लोजिंग कब हुई है? 958 पे। दैट्स वाई दिस कैंडल इज ग्रीन। तो मेरा यही फंडा है कैंडल रेड और ग्रीन का। चलिए, कैंडलस्टिक अभी समझ में आ गया। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि मेरा ये हमारा दोजी बना है, ये दोजी है, ये दोजी है, इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। या फिर मेरी ये लॉन्ग कैंडल है, ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम बस ये हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देखना था। हम डिस्कस करेंगे अब आज के सेक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमारे लिए खुद एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी भी स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए कि उसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं दिया है। ठीक है, तो अब मैं, अगर आपके पास ये स्क्रीन है तो इसमें आपको देखकर पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक को एक सपोर्ट मिल रहा है इस लेवल पर। मतलब स्टॉक को जब भी वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक सपोर्ट मिल जा रहा है, उससे नीचे मतलब नहीं गिर रहा है वो। सिमिलरली जब वो ऊपर जा रहा है तो उसको वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे सेलर आ जा रहे हैं, वो उस पर वहाँ पर ऊपर जाने नहीं दे रहे, वहाँ पर उसकी सेलिंग हो रही है। तो ये अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, दैट मीन्स 60 to 70% ऑफ आवर जॉब इज डन। So let's find out where is the support and resistance level here. So I will select a line, horizontal line. तो अगर आप देखो यहाँ पर जब भी स्टॉक यहाँ पर जा रहा है तो इसकी मेरी सेलिंग हो जा रही है। मैं यहाँ पर एक लाइन मार देता हूँ और यहाँ पर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। जब भी स्टॉक मेरा गिर रहा है तो मेरे को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। अब दूसरी बात मेरे को बोलनी थी यहाँ पर कि मैं जो ये आउटलायर हैं इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे 2 मिनट के लिए वो गया तो उसके नीचे आ गया। मेरे लिए जनरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैटर करती है। बहुत सारे एनालिस्ट आउटलायर को भी देखते हैं, बट आई जनरली फोकस ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सेकेंड थिंग मेरे को बतानी थी आपको कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% करेक्ट है। मेरे को इसको अभी क्रॉस चेक करना होगा कि लाइन मेरी सही है या गलत है। इसको मैं कैसे क्रॉस चेक करूँगा? पीछे का जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको देखकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या बोलता है, हिस्ट्री रिपीट्स। तो जो पहले हुआ है वो आगे भी होगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पहले भी इसने रेजिस्टेंस फेस फील किया होगा। सिमिलरली जो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, पहले भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला होगा। तो देखते हैं पीछे क्या होता है। तो मैंने कुछ ग्राफ को थोड़ा छोटा किया, देखो आप, यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिला था नवंबर दिसंबर में, इससे नीचे इसका नहीं गिरा था। और देखते हैं, ये देखो आप, यहाँ पर भी इसका ये अब क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया जब यहाँ से वो गिर रहा है नीचे। ये अभी रेजिस्टेंस नहीं है, ये अब मिल गया जब यहाँ से नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब जब स्टॉक नीचे गिरता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, जब स्टॉक ऊपर उठना चालू करता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर आप देखोगे जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तो मेरा ये क्या बन गया, सपोर्ट जोन मिल गया, जो कि मेरा आगे अभी करंट में मेरा रेजिस्टेंस है। तो जो मेरा आज सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकता है, जो आज रेजिस्टेंस है वो मेरा सपोर्ट बन सकता है। तो जब मेरा स्टॉक मूव कर रहा था ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था, और जो कि पहले ये मेरा क्या रहा है, सपोर्ट जोन रहा है। और पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं, ये देखो आप, अब एक मेरे को अब ये, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ये क्या बन गया था मेरा
रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और पीछे जाकर देखते हैं, ये देखो आप, जब मेरा मार्केट, ये लाइन कैसे आ गई, ओके, अब जब मार्केट मेरा यहाँ से ऊपर उठना चालू हुआ, फिर उसका जब यहाँ पर गिर रहा था, फिर उसको बार बार यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन जब ऊपर जा रहा था ये, तो यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिल रहा था। और देखते हैं पीछे जाकर, ये देखो आप, अब मेरा कब चला गया, मैं 2014 में चला गया। 2014 में कौन सा मेरा सपोर्ट लेवल है, ये वाला 730 लेवल्स पे सपोर्ट है 2014 में। तो डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स हमको मिल सकते हैं। नीचे जा रहा था, यहाँ पर सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ पर इसे अब रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि आज के करंट सिनेरियो में मेरा क्या है, सपोर्ट जोन है। और जो पहले 2014 में क्या था, रेजिस्टेंस जोन था, ये देखिए आप 920 लेवल्स। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालते हैं। एक स्टॉक और देखते हैं, SBI को। अब ये SBI का मेरे पास ग्राफ है। मैं अगर देखूं, यहाँ पर स्टॉक इस लेवल पर जा रहा था, नीचे गिर रहा था, फिर जा रहा था, फिर नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस कर लिया। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से जब ऊपर जा रहा था, यहाँ पर भी क्रॉस किया है, तो मैं एक ये लाइन यहाँ पर भी मार देता हूँ मैं। और यहाँ पर जब नीचे हल्का सा गिर रहा था, यहाँ से जो उठना चालू किया, तो यहाँ पर से एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया है। तो अगर आप देखोगे, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, तो इसको यहाँ सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाना चालू हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, अभी रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि इससे ऊपर वो नहीं जा पा रहा है। अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पर सेलिंग हो गई, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने फाइनली क्रॉस कर लिया, यहाँ पर इसने क्रॉस कर लिया। फिर दूसरा, मैं कभी कभी यहाँ वॉल्यूम भी देखता हूँ। अगर मेरा ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब अच्छे खासे बायर सेलर्स हैं अवेलेबल, और जब ओपन पे बंद हुआ है, हाई पे बंद हुआ है, तो मतलब बायर्स ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद अब जब ये ऊपर उठा है, फिर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करना चालू कर दिया, लेकिन जब ये अब गिरना चालू होगा, तो मेरा ये क्या रहेगा, उस टाइम पे सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 300 लेवल से जब गिर रहा है, तो 280 पे इसको एक सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस रहा था पहले। अब मैं पहले चेक करूँगा बिफोर कंफर्मिंग कि मेरी तीनों लाइन जो मैंने बनाए सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो मेरे ठीक है या गलत है। मैं पीछे जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर भी इसने पहले रेजिस्टेंस फील किया था, मतलब 280 के लेवल उसने पहले भी क्रॉस नहीं कर पाया था। और साथ ही में मेरा ये जो लाइन है पहले भी सपोर्ट रहा है, मतलब तो आप देखो यहाँ पर ये जो था ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है 250 के लेवल, मतलब सितंबर में ही सपोर्ट था, अक्टूबर में भी सपोर्ट था, दिसंबर में भी सपोर्ट रहा है। मतलब जो पहले सपोर्ट मिल रहे थे उसको वो आगे भी सपोर्ट मिल रहे हैं। लेकिन अभी मेरा आज के करंट सिनेरियो में क्या है, मेरा ये सपोर्ट जोन है। कल को मान लो SBI मेरा 280 लेवल्स के नीचे आता है, मतलब 270 लेवल्स पे ट्रेड करना चालू कर देता है मान लो, तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसने ये ब्रेक कर दिया है। अब ये सपोर्ट रहेगा मेरा। तो ऐसे में सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करता हूँ। चलो अब आगे जाते हैं। और अब आप यहाँ पर देखो, ये मेरे को एक यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है, जब मार्केट गिर रहा है ऊपर उठ रहा है, तो मेरा ये अब क्या बन गया है, रेजिस्टेंस जोन बन गया था, ऊपर जा रहा था, और अब मेरा ये सपोर्ट जोन बन गया है। अब मैं चेक करता हूँ आगे जाकर, ये देखो आप, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट जोन था, इसी के आसपास ही इसने ट्रेड किया है। थोड़ा मैं लाइन और नीचे कर देता हूँ, ये देखो आप, ये देखो आप, पहले भी यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फील किया है। और पीछे जाकर देखते हैं, ये देखो आप, यहाँ पर वो क्रॉस नहीं कर पाया 297 लेवल्स, कितने टाइम से क्रॉस नहीं कर पाया है, लेकिन इसने एक बार यहाँ पर क्रॉस किया है। मतलब अब मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा 330 के लेवल्स पर। तो इस ग्राफ को अगर मैं मंथली देखना चाहूँ ताकि मेरी ज़्यादा कैंडल्स आ सकें, अब ये कैंडल्स देखो आप, मंथली मतलब एक मंथ की कैंडल है, उसको भी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये कैंडल अब आप देखो,
ये हम लोगों ने जो लाइंस निकाली हैं, देखो आप पूरे मंथ में 2010 से लेकर 2017 तक वैलिड रही हैं और आगे भी ये वैलिड रहने वाली हैं। 2010 में इसने 330 के लेवल्स क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। उसके बाद वो जब गिरना चालू हुआ तो यहाँ पर आके रुका 150 लेवल्स पर, जबकि इनने बीच बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रुका है वो। फिर ऊपर उठना चालू किया, यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस मिला, नहीं गया। फिर गिरना चालू हुआ, फिर उसे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर उठना चालू हुआ, फिर यहाँ पर उसे थोड़ी देर होल्ड करा, लेकिन फिर उसने ऊपर जाना चालू हुआ। फिर लेकिन यहाँ पर आगे 330 के लेवल्स पर इसने रेजिस्टेंस फील किया, फिर नीचे गिरा, फिर उसे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर उठा, फिर यहाँ पर अभी है। कल को अगर मेरा SBI 300 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 330 लेवल्स होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या दिया है? ब्रेकआउट दिया है। तो ये मेरे को बोलते हैं ब्रेकआउट, जब वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, वो मेरे स्टॉक्स होते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो हम इन्हीं स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कौन से स्टॉक्स जिसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है। यहाँ से ऊपर आने के बाद ये 330 लेवल्स पर जाएगा ही जाएगा, और 330 लेवल्स पर अगर वो होल्ड करता है और उससे ऊपर ट्रेड करता है तो इट कैन गो फर्दर हायर लेवल्स। और अगर 330 लेवल्स पे अगर वो नहीं रुक पाता है, नीचे गिरना चालू होगा, तो वो कहाँ तक पहले आएगा? 300 के लेवल्स पर आएगा और थोड़ी दिन रुकेगा। वहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया, उसके बाद वो कहाँ पर आएगा? 280 के लेवल्स पर आएगा। वहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया, उसके बाद वो कहाँ पर आएगा? 245 के लेवल्स पर आएगा। वहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया तो वो कहाँ पर आएगा? 150 लेवल्स पर आना है उसको। ऐसे ही हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। पहले मेरा स्टॉप लॉस किया होगा 280 हुआ, उसके बाद मैं दूसरा स्टॉप लॉस किया होगा 245, उसके बाद में फर्दर गिनना चालू हुआ तो 150 मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इसके बाद फिर लोगों की सेलिंग ज़्यादा आ जाती है। तो जो मैंने आपको बोला था यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले हुआ है वो आगे भी होगा, और वही हो रहा है और वही होगा। चलिए एक स्टॉक और लेते हैं, मारुति। मारुति का चार्ट देखते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फील कर रहा था। मैं यहाँ पर लाइन मार देता हूँ, और इधर कहाँ पर था, थोड़ा और छोटा करते, ये रहा एक, ये इसको सपोर्ट जोन है। तो 4800 मेरा सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का, 6200 अराउंड मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने ब्रेकआउट दिया है, अभी ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। 2-3 दिन देखें और इसके नीचे गिरना चालू हो जाएगा तो मतलब स्टॉक इससे नीचे ट्रेड करेगा, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन पहले हम कंफर्म करते हैं कि दोनों मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक है या गलत है। मैं पीछे जाता हूँ, ये देखो आप, ये मेरा क्या था? अभी सपोर्ट है, ये मेरा बन गया था रेजिस्टेंस। आप देखो कितने दिन, कम से कम नहीं तो 15-20 डेज यहाँ पर रहा है, लेकिन उसके बाद क्रॉस किया है। मतलब दैट मीन्स दैट्स अ रेजिस्टेंस जोन व्हेन स्टॉक वाज मूविंग फ्रॉम 3800 टू 4800, बट वंस द स्टॉक रीचेस हियर, उसको रेजिस्टेंस मिला, गिरना चालू हुआ, लेकिन जो पहले मेरा रेजिस्टेंस था वो मेरा आज बन गया सपोर्ट जोन। और पीछे देखते हैं अपन जाकर, ये देखो आप, बहुत बढ़िया। ये जो मेरी लाइन है, अगर आप देखोगे, ये 4800 जो मेरे लेवल्स हैं, वो पहले क्या था? मेरा रेजिस्टेंस। इसी वजह से वो मेरा आज क्या बन गया है? सपोर्ट, 4800 लेवल्स, क्योंकि पहले वो क्या रहा था? रेजिस्टेंस रहा था। ये देखो आप, अगस्त में जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। अक्टूबर में जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। नवंबर दिसंबर में जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। 3 महीने उसने ट्राई किया 4800 क्रॉस करने को, नहीं कर पाया। लेकिन जब एक बार क्रॉस हो गया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तो वो मेरा आज क्या बन गया है? सपोर्ट बन गया है। ऐसे तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को हम निकालते हैं। होप टिल नाउ इट्स क्लियर। सो लेट्स सी फ्यू मोर स्टॉक्स। रिलायंस का स्टॉक देखते हैं, जो आजकल बहुत जूम में है कि ये इतना बढ़ क्यों रहा है। पहले तो कभी नहीं बढ़ा, 8 साल तक मैं चार्ट दिख रहा था इसका, 8 साल तक नहीं बढ़ा। लास्ट 8 ईयर्स कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन अब एकदम से इसका इतना मूवमेंट आना चालू हो गया। कहीं ब्रेकआउट हुआ है क्या? उस ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे, ये लेवल मेरे को अभी यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक लाइन मार देता हूँ, और इसने अच्छे तरीके से ऊपर गया है और अच्छे वॉल्यूम से गया है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल थे बाइंग करने के लिए। अब पहले, बिफोर मूविंग एड, आई वांट टू कंफर्म वेदर दिस लाइन इज़ रियली अ रेजिस्टेंस लाइन और नॉट। और मेरे को ये कहीं ना कहीं एक ये सपोर्ट भी मिल रही है।
चलो अब आगे देखते हैं। देखो आप, ये सपोर्ट रही है, हमने तो बस यहाँ पर लाइन मारी थी, पीछे भी सपोर्ट रही है। देखो आप, यहाँ पर भी सपोर्ट रहा है इसको। ये देखो आप, स्टॉक मेरा मूव कर रहा था 180 के लिए 1080 के लेवल से, फिर नीचे आ रहा था, फिर मूव कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था। और देखता हूँ पीछे मैं, एक मेरी ये भी सपोर्ट जोन रहा है इसका 800 के लेवल्स पर। स्टॉक को थोड़ा छोटा करते हैं अभी। ये देखो आप, ये कब की बात है, 2014 में भी स्टॉक मेरा 1100 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया। एक बार क्रॉस किया, अगले दिन गिर गया, मतलब उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और लेकिन उठा कहाँ से था, यहाँ से उठा था 800 के लेवल्स पर। तो 800 के लेवल्स की पहले यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर थोड़े दिन रहा 950 के लेवल्स पर, जो कि मेरा रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पर। फिर उसका जब उसने क्रॉस किया, वो कहाँ पर गया, 1100 के लेवल्स पे, जो कि नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया, गिरा। गिरने पे क्योंकि जो मेरा रेजिस्टेंस था वो मेरा भी सपोर्ट होगा, थोड़े दिन रुका, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन इसने फिर इसको तोड़ दिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, जो कि मेरा सपोर्ट था, अब ये मेरा क्या बन गया, रेजिस्टेंस। दैट्स द गुड थिंग अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मेरा यहाँ होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब फिर फॉल होगा। और ये देखो आप, ये फिर मेरे को सपोर्ट मिला, जो कि पहले मेरा सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट रहा, फिर उठा, नहीं होल्ड कर पाया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ से आगे फिर सेलिंग होना चालू हुई। कहाँ तक हुई, इसी सपोर्ट पे। देखो आप, जो 2014 में था वो 2015 के स्टार्टिंग में था, वो 2015 के मिड में भी था। तो यही जो एनालिस्ट लोग जो हम लोग टीवी में देखते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मेरा यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, स्टॉक मेरा यहाँ तक करेक्ट होगा, आप यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा के रखो। तो यही सब हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जाते हैं पीछे कंफर्म करने के लिए, और जाते हैं पीछे। ये देखो आप, 2000 यहाँ पर मेरा स्प्लिट हुआ है 2010 में, इस वजह से ग्राफ सही नहीं है, जीरोदम में भी फीचर है नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा पीछे लेकर जाऊँगा। ये देखो आप, 2010 में भी इसने 1100 पर रेजिस्टेंस फील किया था, नहीं क्रॉस कर पाया। मतलब 2010 से लेकर 2017 तक ये लेवल्स मेरे क्रॉस ही नहीं हो पाए थे 1100 के, जो कि इसने आज क्रॉस कर दिए हैं। इस वजह से ये स्टॉक मेरा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 1400 के लेवल्स पर। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बाद ये ऊपर कितना जाएगा। मैं बताता हूँ आपको ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि मैं अब चार्टिंग में देखूँगा, क्योंकि जीरोदा में स्प्लिट के कारण वो ग्राफ सही नहीं दिखेगा। अब मैंने मंथली ग्राफ खोला ताकि मेरे पास ज़्यादा कैंडल्स आ सकें। मैं इसका 1100 के अराउंड मैंने ये लाइन बना दी है। ये देखो आप, जो 1100 का जो रेजिस्टेंस था पार हुआ है। अब ये कहाँ जाएगा मैं बताता हूँ आपको, ये जाएगा यहाँ तक पहले 1500 के लेवल्स पर, और 1500 के लेवल्स पे करंटली ट्रेड 1400 पे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और ये कल को 1500 लेवल्स टच करेगा। उसके बाद इसका फिर रेजिस्टेंस आएगा, इसको यहाँ पे क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, और एक बार इसने ये क्रॉस कर लिया उसके बाद फर्दर मूव आएगा। वो कितना मूव आएगा वो बाद में देखेंगे, वो भी हमारा कंसर्न नहीं है राइट नाउ। लेकिन यहाँ पर अब इसको ये रेजिस्टेंस फील करेगा, और एक बार उसने रेजिस्टेंस फील कर लिया, रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया, थोड़े दिन सस्टेन रहा, तो वो और आगे ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे हम लोग स्टॉक को बोलते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। ये जो मेरा रेजिस्टेंस था इतना पुराना, उसने अगर तोड़ा तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो जिसने भी यहाँ पर अगर बाइंग कर ली होगी 1150 1200 के लेवल्स पर, उसको 1400 के लेवल्स पर आज ये स्टॉक मिल रहा होगा, क्योंकि उस स्टॉक को क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे निकालें ब्रेकआउट स्टॉक। इतने सारे मोर देन 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है मार्केट में, हम कैसे निकालें ब्रेकआउट स्टॉक। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड टॉप स्टॉक रिसर्च। इसमें आप अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेना, लॉगिन कर लेना, और एक ऑप्शन रहता माई ट्रांजैक्शन में कस्टम स्क्रीनर। तो इसमें आप कस्टम स्क्रीनर में जाना आप, और आपके जो भी क्राइटेरियाज हैं वो आप इसमें अपने डाल सकते हो। जैसे कि मेरे को वो स्टॉक्स देखने जिनका प्राइस 10 रुपीज़ से ज़्यादा है, वॉल्यूम और 1000 से कम है, लेट्स से फॉर टाइमिंग 200 से कम है, और जो गेनर आज के दिन में रहे हैं लेट्स से ग्रेटर देन 1% गेनर रहे हैं,
और हाई पे अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। हाई पर क्यों ट्रेड हम देख रहे हैं? क्योंकि हम ब्रेकआउट स्टॉक्स निकाल रहे हैं, हम बॉटम आउट स्टॉक्स नहीं निकाल रहे हैं। बॉटम आउट स्टॉक्स की अलग स्ट्रेटजी होती है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेकआउट स्टॉक, नॉट द बॉटम आउट स्टॉक। तो ब्रेकआउट स्टॉक कौन से होंगे? जो अपने हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, वही तो अपने पुराने लेवल्स को उसने तोड़ा होगा। सिमिलरली फिर अपन को इंडियन स्टॉक सिलेक्ट करना है, मैं सबमिट कर दूंगा। तो मेरे पास देखो आप इतने सारे स्टॉक्स की लिस्टिंग हो गई कि ये जो मेरा सिलेक्शन था उन सबको इसने फुलफ़िल किया और मेरे पास ये सारे स्टॉक्स मेरे निकल कर आ गए। क्रेस्ट वेंचर मेरे को ध्यान है मैंने रिकमेंड किया था 120 के लेवल्स पर, क्योंकि 120 के लेवल्स पर इसका ब्रेकआउट हुआ था। आज 200 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 200 के। चलिए चार्ट भी देखते हैं इसका भी, जब दिखा है क्रेस्ट वेंचर कि क्यों क्रेस्ट वेंचर उस समय हमारे लिए अच्छा था। इसका शायद ज़ीरोधा में आ गया है। ओके, ये शायद कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये अभी D22 ट्रेड में चला गया है। मैं इसमें देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्रेस्ट वेंचर्स का ग्राफ बनाते हैं, ऑल डाटा मंथली। ये देखो आप, ये ग्राफ बनकर आया है मेरा। तो ये जो लेवल था, ये देखो आप, जब ऊपर उठ रहा था यहाँ पर क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस फील कर रहा था। पहले तो नीचे गिरा, कितने 500 के लेवल्स पे 50 लेवल पर आ गया, फिर ऊपर उठ रहा था, लेकिन आप देखो ये क्रॉस नहीं कर पाया। कौन सा लेवल है? अराउंड ये 110-20 लेवल है, 105 का लेवल है एग्जैक्टली। अभी हम निकाल लेते हैं इसको क्लिक करके। ये मेरा क्रॉस एयर आ जाता है तो मेरे को दिख गया ये अराउंड 105 लेवल्स, 103.5 लेवल्स है। तो ये इसने कब की बात है? 2009 की बात है। 2009 में भी नहीं कर पाया, 2010 में भी नहीं कर पाया, 2011 में भी नहीं कर पाया, उसके बाद ये नीचे ही रहा। लेकिन उसने 2017 में इसने क्रॉस कर दिया और आप देखो यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं और इसने क्रॉस कर दिया, मतलब ब्रेकआउट हो गया इस स्टॉक का। क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था वो आज इसने क्रॉस कर दिया और आज आप देखो 200 पे ट्रेड कर रहा है। 100% गेन इन 2 मंथ्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ब्रेकआउट स्टॉक्स। जनरली लोग बॉटम, मेरा जो 52 वीक लो पर उसको बाइंग करते हैं, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता उन स्टॉक्स को राइट नाउ। जो मेरे ब्रेकआउट हुए, मेरे को कंफर्म हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद वो मेरे ऊपर जाएंगे। आई वांट टू प्ले सेफ गेम। तो इस वजह से आप देखो 105 लेवल से 200 के लेवल्स पर गया है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स को। जो भी यहाँ पर स्टॉक आते हैं उनको हम सर्च करना चालू कर देते हैं चार्टिंग में, और मनी कंट्रोल पे थोड़ा उसकी हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि उसका कैसी कंपनी है, कैसा चल रहा है उसका, वो हम फिर देख लेते हैं। एक स्टॉक्स जो मैंने अपना, मेरा फेसबुक का पेज भी है स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस से, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे हम लोग यहाँ चार्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो भी ब्रेकआउट हुए रहते हैं नए, उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो एक चार्ट जो मैंने 25 मार्च को भंसाली इंजीनियरिंग का शेयर किया था यहाँ पर, वो रहा। उसने 29-30 के लेवल्स पर ब्रेकआउट दिया था और मैंने इसका टारगेट दिया 40 to 45 एंड देन 50, और जो अभी 38 लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं ऐसा क्यों, इसका उस टाइम पर हुआ क्या था। तो मैं ओपन करता हूँ BPL का चार्ट और इसको मैंने पॉप आउट किया। 1 डे का चार्ज बन गया, पहले से लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, अब आप देखोगे मैं यहाँ पर, इसमें कहाँ पर है रेजिस्टेंस आप बताओ। एक तो ये लाइन है मेरी रेजिस्टेंस, यहाँ पर जा रहा है अराउंड, ये लाइन मेरी रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट इसका, थोड़ा मैं ग्राफ को और छोटा कर लेता हूँ, ये मेरा सपोर्ट जोन है। मतलब 21 के लेवल्स पे इसका सपोर्ट था, 28 के लेवल्स पर, 26 के लेवल्स पर इसका रेजिस्टेंस था। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी लाइन सही है गलत है। ये लाइन मेरी बहुत बढ़िया नहीं बनी है, कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस ये रहा है, तो मैंने इसको ऊपर ले गया 29 के लेवल्स पर। कुछ गलत नहीं है इसमें, ये देखो आप यहाँ पर, मतलब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, कुछ गलत नहीं है, हमारे चेंज हो सकती है लाइन। उसके बाद अगर आप देखोगे, और ये जो मेरा इसका सपोर्ट रहा है वो मेरा अराउंड रहा है 20 के लेवल पर। तो 20 के लेवल पे इसका सपोर्ट था,
30s के लेवल पे इसका रेजिस्टेंस था। अब आप देखोगे पीछे जितना जाओगे आप ये महसूस करोगे कि ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। ये देखो आप, जब स्टॉक ऊपर यहाँ से जाना चालू हुआ यहीं पर ही जा पाया, 19 के लेवल पर ही जा पाया, उसके बाद फिर वापस चला गया, फिर 23। और पीछे जाता हूँ मैं, और पीछे जाता हूँ मैं, ग्राफ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कैंडल्स आ सकें। ये देखो आप 2016 में भी ये 29 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था, 2015 दिसंबर में भी क्रॉस नहीं कर पाया था। और पीछे जाकर मैं कंफर्म करता हूँ, और पीछे जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मंथली ताकि मेरी ज़्यादा कैंडल्स आ जाएंगी और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ये देखो आप कैंडल्स को, आपको खुद से समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। 2010 में भी ये क्रॉस नहीं कर पाया था, ये मेरी लाइन है 45 के लेवल्स पे, राइट, और ये मेरी लाइन है 30 के लेवल्स पर, ठीक है। तो 2005 में मेरा रेजिस्टेंस कौन सा था, 45 के लेवल्स पर था। उसके बाद ये स्टॉक गिरना चालू हुआ, यहाँ पर थोड़े दिन रहा, उसके बाद यहाँ पर आके रुका 19 पे। देखो आप इसका क्या था, सपोर्ट मिला, जो कि मेरा आजकल यही सपोर्ट था उस समय 2016 के उस टाइम पर। उसके बाद उसे नेक्स्ट सपोर्ट मिला 8 के लेवल्स पर, वहाँ से ऊपर जाना चालू किया क्योंकि ये सपोर्ट था, ही मेरा रेजिस्टेंस बन गया। आप देखो 4-5 महीने यहीं पर ही घुमा है, लेकिन जो उसने तोड़ा तो देखो आपने उसने कैसा तोड़ा, 19 भी लेवल तोड़ा, 29 का लेवल्स भी तोड़ा, और यहाँ तक नेक्स्ट 45 के लेवल्स तक गया। 45 के लेवल्स पर उसने फिर रेजिस्टेंस फील किया, फिर नीचे गिरना चालू हुआ है, और देखो आप कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, 45 से कहाँ तक गया, 14 के लेवल्स पर गया। लेकिन अगर मान लो मेरी यहाँ बाइंग होती तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखता, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रखता, 28 के लेवल्स पे मैं स्टॉप लॉस रखता। बाकी मैं ग्राफ को थोड़ा और बढ़ा के मैं और अपना स्टॉप लॉस चेंज भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर देखो आप, इसी वजह से ही, क्योंकि यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया था 29 के लेवल्स पर मार्च में, तो क्योंकि मेरे को पता है कि जो पहले हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर हुआ है, जो यहाँ पर हुआ है, वो आज यहाँ पर भी होगा। इसी वजह से मैंने इसका टारगेट दिया था 45, जो करंटली आज 38 पे ट्रेड भी कर रहा है। 30% गेन हो चुके हैं मेरे 10 डेज़ में। तो ऐसे ही हम निकालते हैं, टारगेट सेट करते हैं 45 लेवल, और 45 लेवल से अगर ऊपर उसने क्रॉस कर लिया तो मेरे नेक्स्ट टारगेट क्या डिसाइड होते हैं वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं अभी। ऐसे हम लोग निकालते हैं स्टॉक्स को। एक स्टॉक और देखते हैं, नितिन स्पिनर, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में दिया था 33 लेवल्स पे, और करंटली 48 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, एक स्टॉक है एच का ग्राफ देखते हैं अब। और ये स्टॉक्स मेरे को पता कैसे चले, एसी से ही। यहाँ पर 8-10 स्टॉक की लिस्टिंग हुई, उसको मैंने देखा चार्ट में कैसे लग रहा है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला, हाँ उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो मेरे को लग गया मेरे को ये मेरा बन सकता है। और मनी कंट्रोल पे थोड़ा देख लेता हूँ कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी बुक वैल्यूज़ वगैरह क्या है, तो थोड़ी बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं उसमें मनी कंट्रोल में। इसका डेली चार्ट बनाएंगे क्योंकि इसकी लिस्टिंग शायद अक्टूबर-नवंबर में हुई थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका ये जो था रेजिस्टेंस लेवल था 121 का, आप देखो ये, और ये मेरा इसका था 95, इसका सपोर्ट जोन रहा है। ये ऊपर जा रहा था, गिर रहा था, ऊपर जा रहा था, गिर रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर। लेकिन यहाँ पर इसने देखो ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा है, इस वजह से स्टॉक क्या हो गया, ब्रेकआउट स्टॉक। और देखो अब आप ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर देखो इसने कितने बड़ी कैंडल है, कितने ज़्यादा मतलब बुरे तरीके से गिरी है ये। और ये कहाँ से गिरा है मेरा स्टॉक, 190 के लेवल से गिरा है। तो मेरा टारगेट क्या होगा अभी, मैं मानता हूँ अगर ये एक बार ये ऊपर उठा है देन डेफिनेटली इट विल फर्स्ट रीच हेयर 160 लेवल, देन इट विल रीच हेयर 178 लेवल्स, एंड देन इट विल रीच हेयर 190 लेवल्स। और जो बहुत सारे बड़े एनालिस्ट जो हैं, मैं CNBC में देख रहा था, लोग बोल रहे हैं 160 to 170 HPL का टारगेट दे रहे हैं अभी ये लोग। और जो कि अपन ने उस समय बोला था यहाँ पर 125 के लेवल्स पे जब तक 160 to 170 जाएगा, इसी बेसिस पर ही मैंने इस चार्ट के बारे में बोला था। और अभी करंटली ये
कितने पे ट्रेड कर रहा है, 135 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, हर हाई इसने 140 का मारा था। तो ऐसे हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स को निकालते हैं। एक स्टॉक में लास्ट और देखता हूँ, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। V2 रिटेल देखते हैं, या फिर V2 रिटेल को देखते हैं। V2 रिटेल को मैं इसका ग्राफ बिल्कुल छोटा कर देता हूँ अभी, क्योंकि एक टाइम पे 14 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, थोड़ा इसकी क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। मैं इसको मंथली बनाता हूँ ग्राफ को। हाँ, ये हटा दो। अब देखो आप, जैसे क्रेस्ट वेंचर का चार्ट था, सेम चार्ट V2 रिटेल का है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये था इसका रेजिस्टेंस, उस टाइम पे सपोर्ट जोन था, लेकिन अब ये बन गया रेजिस्टेंस जोन इस लेवल पर। कब की बात है, 2009 की बात है। 2009 की बात, ऊपर गया, नहीं होल्ड कर पाया, फिर उसके बाद 14 के लेवल्स पर ट्रेड किया। एक बार इन्हें फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, लेकिन इसने 10th मीन्स अक्टूबर 2016 में इसने ब्रेकआउट दे दिया 100 के लेवल्स पर। कितना साल पुराना, 7 ईयर्स ब्रेकआउट बोला ऐसे, 7 ईयर्स ब्रेकआउट। और जो इसने 100 के लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया है, आज ये ट्रेड कर रहा है 190 के लेवल्स पर। आज ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स विद इन 5 मंथ्स यू गेट 100% गेन इन द स्टॉक। और आज हमारे टारगेट इसकी हम लोगों ने सेट कर रखी कि 250 भी जाएगा, उसके बाद ये 420, 500, 600 लेवल तक के टारगेट हैं इस कंपनी के V2 रिटेल के। और फंडामेंटली ऑल्सो कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड। So on the basis of this breakout, we are setting the target of 200, 250 levels, all these things. And with 200 level already achieved, now we are saying that it will go to 500, 400 levels, because it has given a huge breakout, 8 years breakout. तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन से होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम लोग कैसे स्टॉक्स को निकालते हैं बाय यूजिंग दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैंने तो इसका एक बना रखा है 1 ईयर हाई का, इंडियन स्टॉक सेलेक्ट कर रखे, जो भी मेरे निकल कर आते हैं मैं उसको पकड़ता हूँ, और सारे चार्ट्स को मैं देखता हूँ, सारे चार्ट्स की मैं एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा बहुत फंडामेंटली भी चेक करता हूँ कंपनी के बारे में, उसके बाद मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ। सेंचुरी इनकम हमने 300, 330 के लेवल्स पे दिया था, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे, 430 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिलेटेक्स 100 लेवल्स पे ब्रेकआउट हुआ था, जो आज 133 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आप ये सब देखना आपकी फिलेटेक्स का कैसे 100 लेवल्स पे ब्रेकआउट हुआ था, कैसे सेंचुरियन का 330 लेवल्स पे ब्रेकआउट हुआ था। ये सब आपको दिखना चालू हो जाएंगे। और अभी मेरे को कल भी एक चार्ट बहुत अच्छा मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये जाएगा BGR एनर्जी सिस्टम, ये रहा। मेरे को एक दोस्त मेरा ग्रुप में है, तो उसने बताया था कि एक बार सर इसका चार्ट देखो, तो मैंने देखा था BGR एनर्जी सिस्टम। मैं इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ, और ये हमारा भी आज के टाइम पे मैं इसके लिए बुलिश भी हूँ। लेट्स एंटर BGR एनर्जी सिस्टम हेयर। मेरा आ गया ये, मैं इसका चार्ट मेरा आ गया है। इसका देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी मैंने सेट करा था, ये था मेरा 100 के लेवल्स पर इसका सपोर्ट है। और कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, और ये मेरा 160 इस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस था, ये 170 के लेवल पर, जो इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है मेरा। तो मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि जो पहले मेरा ये रहा है, इतना तो जाएगा, ये 170 से 200, 240, दिस 210 पहला मेरा जाएगा, उसके बाद 240 मेरा जाने के चांसेस हैं। और अगर ये 240 लेवल भी इसने क्रॉस कर लिया अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट लेवल मेरा 355 लेवल्स मैं देख सकता हूँ BGR एनर्जी में। और 355 भी लेवल्स इसने क्रॉस कर लिए, तो मेरा नेक्स्ट लेवल रहेगा ये 497 के लेवल्स। और 497 के लेवल्स भी इसने क्रॉस कर लिए, तो मेरा रहेगा ये 850 लेवल्स। तो ये सब मेरे क्या रेजिस्टेंस है।
अगर मेरा इसने 170 क्रॉस करके यहाँ पर 232-35 थोड़े दिन रहता है और ऊपर जाता है, वहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो मेरा 360 लेवल्स को मैं देख सकता हूँ। 360 लेवल्स अगर मेरा ब्रेकआउट होता है तो 500 लेवल्स को मैं देख सकता हूँ। सिमिलरली आई कैन सी फर्दर हायर लेवल्स। तो होपफुली आज के सेशन में आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम कैसे देखते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन से होते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, और ऐसे स्टॉक्स को हम कैसे ढूंढते हैं। दिस साइट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड वी फॉलो दिस थिंग, हिस्ट्री रिपीट्स। जो पहले हुआ है वो आज भी होगा। तो होपफुली टुडे यू लाइक दिस सेशन। Please like this video if you enjoy, if it's really giving some inputs to you related to stock market. Secondly, मैं डिस्क्लेमर है मेरा कि ये जितना भी हम लोगों ने किया है ये सब ओनली स्टडी पर्पस है, एजुकेशन पर्पस पे है। जो भी मैंने बताया आप इसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।